Good morning, friends. Important video to highlight changes made in GST clause by clause from clause number 128 to clause number 144 in Finance Bill 2023. Start with the first one. Now, there is facilitation. Any unregistered person and composition dealer is being allowed to make intra-state supply of goods through e-commerce operator. The first change, clause number 128. Next one. Second proviso and third proviso under section 16 subsection 2. And what is this? If recipient buyer fails to pay the payment value of taxable supply plus tax thereon within 180 days from date of issuance of invoice, then such recipient need to reverse credit along with interest, and he can reavail this credit once he makes the payment to the supplier. So in this provision, it is pertaining to if partial payment is being made, then reversal would be required only to the extent of partial non-payment, value of taxable supply plus tax thereon. अगर recipient fail करता है for payment to the supplier, value of taxable supply plus GST thereon within 180 days from date of issuance of invoice, तो recipient को credit reverse करनी पड़ेगी along with interest. और जब भी recipient बाद में पे करेगा उसे credit मिल जाएगी, but interest is a loss. So इस provision में आपको ये ध्यान रखना है, अगर partial payment आपने कर दिया है तो सिर्फ partially आपको reverse करना है. And in case of RCM reverse charge liability as a recipient जब आप पे करते हैं Schedule 1 की transaction या transaction pertaining to section 15 subsection 2 clause B where supplier is liable but incurred by the recipient, उस केस में ये proviso applicable नहीं होगा. Come to the next one. Under section 17 subsection 5 we know negative list block credit, आपको credit नहीं मिलती है. Specifically provided now any goods or services used or intended to be used for corporate social responsibility as defined under Companies Act 2013 under section 135, अब आपको इसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी. एक नया सबसेक्शन इंसर्ट कर दिया गया, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज FA. ये प्रोस्पेक्टिव है. अब इशू ये होगा कि ये फ्रॉम ए डेट टू बी नोटिफाइड, ये सारे जो क्लॉजेज में आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, ये फ्रॉम ए डेट टू बी नोटिफाइड, यानी ये फाइनेंस बिल का पार्ट है. फाइनेंस एक्ट बनेगा और जब डेट नोटिफाई होगी वहां से एप्लीकेबल होगा. अब हमें ये देखना है पास पीरियड के लिए प्रायर टू दिस, क्योंकि ये प्रोस्पेक्टिव क्लॉज है, एप्लीकेबल ओनली फ्रॉम द डेट नोटिफाइड. पास पीरियड के लिए डिस्प्यूट चल रहा है, डाइवर्जेंट एडवांस रूलिंग एंड डाइवर्जेंट इंटरप्रिटेशन. In my humble submission, when this is first time introduced as a new subsection, section 17 subsection 5 clause FA, and that is applicable from a date to be notified, तो restriction आपका उसके आगे से applicable होगा. Past period के लिए we have chance to argue that corporate social responsibility मेरी statutory obligation होती है in the course of furtherance of business. मुझे क्रेडिट मिलनी चाहिए. लेट्स वेट एंड वॉच
नेक्स्ट मूव करता हूं क्लॉज नंबर 131। देखिए क्या होता था हमने जीएसटी के अंदर देखा, जीएसटी के अंदर इफ यू आर ए पर्सन एंगेज्ड exclusively in supply of non-taxable goods or services जिस पे जीएसटी नहीं लगता, और exempted goods and services exclusively, exempted goods means notification 2/2017, services 12/2017, आप exempted goods and services में डील करते थे, या आपकी लाइबिलिटी जो थी वो सब्जेक्ट टू आरसीएम, आप सप्लायर हैं बट लाइक जीटीए आपका रिसिपिएंट आरसीएम में पे करता है, आपके पास और कोई सप्लाई नहीं है, तो एक नोटिफिकेशन था 5/2017। सो सेक्शन 23 के अंदर ये प्रोविजन था कि आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, बट कॉन्फ्लिक्टिंग व्यू आता था कि सर इट इज सब्जेक्ट टू सेक्शन 24। सो 23 सेक्शन को नाउ they have amended and starting with the non-obstante clause, notwithstanding anything contained in section 22 subsection 1, जहां पे आपकी रजिस्ट्रेशन के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट होती है, एंड सेक्शन 24 जहां पे आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, लाइक व्हेन यू आर liable to pay under RCM, reverse charge, interstate supply। तो ये डिस्प्यूट आता था कि मैं तो एक्सक्लूसिवली नॉन टैक्सेबल गुड्स में डील करता हूं, एग्जेम्प्टेड सप्लाई में डील करता हूं, अगर थोड़ा सा आरसीएम मेरे ऊपर आ गया तो क्या मुझे रजिस्ट्रेशन लेना होगा बिकॉज ऑफ सेक्शन 24। अब विथ नॉन ऑब्स्टेंटी क्लॉज इन सेक्शन 23, अगर आप एक्सक्लूसिवली नॉन टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज में या एग्जेम्प्टेड सप्लाईज में या बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन आपको कह दिया गया है कि आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना अंडर आरसीएम 5/2017, आपकी जो सप्लाई है सब्जेक्ट टू आरसीएम है, तो अब आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। वेल डन। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, देयर आर 4 सेक्शन 37 जीएसटीआर 1, सेक्शन 39 जीएसटीआर 3B, सेक्शन 44 जिसमें आप एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9A फॉर कंपोजिशन डीलर एंड 9B फॉर ई-कॉमर्स ऑपरेटर, and then section 52 for e-commerce operator जहां पे आप GSTR 8 फाइल करते हैं। तो इन रेस्पेक्टिव सेक्शन में 37, 39, 44 एंड 52 टाइम लिमिट इज नाउ बीइंग प्रिस्क्राइब्ड कि आपको विद इन 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग सच स्टेटमेंट और रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा। अब आपके लिए ओपन विंडो नहीं है। एक अनेबलिंग प्रोविजन भी इन्हें दे दिया कि गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल इस ड्यू डेट को 3 years की टाइम लिमिट को एक्सटेंड कर सकती है। नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड, सेक्शन 54 सबसेक्शन 6, इसके अंदर एक प्रोविजन है कि आपको 90% का जो आपने रिफंड क्लेम किया है वो प्रॉपर ऑफिसर को आपको देना है, बट उसमें वो एक्सक्लूड करता था कि प्रोविजनल क्रेडिट अगर आपने ले रखी है तो वो पोर्शन आपको अपने रिफंड क्लेम से एक्सक्लूड करना पड़ेगा। मतलब 90% टू बी कैलकुलेटेड ऑन रिफंड क्लेम अमाउंट एक्सक्लूडिंग दिस प्रोविजनल क्रेडिट। अब ये रेफरेंस ऑफ प्रोविजनल क्रेडिट टेकन इनने एक्सक्लूड कर दिया, डिलीट कर दिया। क्यों कर दिया? बिकॉज सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 में you are allowed to take provisional credit because it is self-assessed. Every registered person subject to such condition and restriction is eligible to avail ITC
एज ए सेल्फ असेसमेंट टैक्स। एंड जस्ट टू ड्रॉ रेफरेंस, देखिए सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी, रेड विथ रीसेंट अमेंडमेंट मेड इन रूल 37A, अगर सप्लायर ने पेमेंट नहीं किया तो भी आपको क्रेडिट मिलेगी, बट 37A बोलता है कि आपका सप्लायर मान लीजिए 22-23 का ट्रांजैक्शन है और उसने पे नहीं किया, तो आप एज ए रिसिपिएंट क्रेडिट ले लीजिए, प्रोविजनल क्रेडिट, लेकिन उसे 30 सितंबर 2023 तक GSTR 3B के जरिए पे करना पड़ेगा। अगर नहीं पे किया तो बीइंग रिसिपिएंट आपको इस क्रेडिट को रिवर्स करना पड़ेगा बाय 30 नवंबर 2023 अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आपका चालू होगा 30 नवंबर 2023 के बाद, तो आपको प्रोविजनल क्रेडिट मिल गई ना। सो ये जो प्रोविजनल क्रेडिट का रेफरेंस था वो उन्होंने ऑमिट कर दिया। अब जो आप रिफंड क्लेम करेंगे उसका 90% प्रॉपर ऑफिसर को आपको देना है। नेक्स्ट हम आते हैं सेक्शन 56 में, जहां पे इंटरेस्ट ऑन डिलेड रिफंड की बात है। सो इन्हें ये कह दिया, नाउ दे विल प्रोवाइड सर्टेन मैनर विद सर्टेन कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन कि पीरियड ऑफ डिले कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अगर 60 दिन से ज्यादा डिले हो गया वी आर एंटाइटल फॉर इंटरेस्ट ऑन डिलेड रिफंड। सो ने कहा ये कैसे कैलकुलेट होगा, इसके लिए हम मैनर प्रिस्क्राइब करेंगे सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन। अगर बियॉन्ड 60 डेज है फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग रिफंड क्लेम टिल डेट ऑफ रिफंड ग्रांटेड। तो ये सेक्शन 56 की बात हुई। अब मैं आपको लेके आता हूं सेक्शन 122 में एक नया सबसेक्शन 1B इंसर्ट कर दिया गया। अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर जो अब अनरजिस्टर्ड सप्लायर, अनरजिस्टर्ड पर्सन एंड कंपोजिशन डीलर को अलाउ करेगा थ्रू देयर कॉमन पोर्टल, जो उनका ई कॉमर्स ऑपरेटर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, if they are facilitating any unregistered supplier or composition dealer for intra-state supply of goods, तो उसे लॉ प्रोविजन सारे फॉलो करने हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर को। If there is any violation of any provision of the act and rules made thereunder, उसके ऊपर पेनाल्टी लग जाएगी। पैनल प्रोविजन अंडर सेक्शन 122 सबसेक्शन 1B। नेक्स्ट क्या चेंज आए वो भी मैं आपके सामने रीड कर देता हूं। सेक्शन 132 सबसेक्शन 1, इंपॉर्टेंट वन, दो इंपॉर्टेंट चेंजेस। जो थ्रेशोल्ड अमाउंट होती थी फॉर लॉन्चिंग प्रोजिक्यूशन which was 1 crore, now increased to 2 crore rupees, except जब you are engaged in issuance of invoice without supply of goods or services, which is called fake invoice। 132 subsection 1 में 12 ऑफेंस हैं। उन्हें कह दिया फॉर लॉन्चिंग प्रोजिक्यूशन पहले वो 1 करोड़ होता था, अब 2 करोड़ होगा एक्सेप्ट फेक इनवॉइस। 3 offenses out of 12 are now decriminalized। 132 subsection 1 clause G, J and K, when you're obstructing GST officer to perform duties, or you're deliberately tampering the evidences, और when you fail to supply information, ये 3 ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। इस पे अब प्रोजिक्यूशन प्रोविजन लॉन्च नहीं होगा। नेक्स्ट चेंज क्या किया है, 138 कंपाउंडिंग इन जीएसटी। और जीएसटी में कंपाउंडिंग आपने सुना नहीं होगा, बट नाउ दे हैव मेक रिलैक्सेशन। पहले एग्जिस्टिंग रेंज होता था कि कंपाउंडिंग के लिए दे कैन फ्रॉम एग्जिस्टिंग रेंज
50% to 150%, मिनिमम 50 मैक्सिमम 150 ऑफ टैक्स अमाउंट होता था, जिसको इन्हें रिड्यूस कर दिया 25% to 100%. And compounding you can always go either before or after institution of prosecution provision. बट कंपाउंडिंग आप एक बार ही ले सकते हैं. फेक इनवॉइस के केस में कंपाउंडिंग नहीं होगी, और जो 3 ऑफेंसेस डीक्रिमिनलाइज कर दिए गए उनके लिए कंपाउंडिंग की अब जरूरत नहीं है. कम टू द नेक्स्ट वन. एक सेक्शन नया इंसर्ट किया गया, सेक्शन 158A. अब इसमें इनने ये पावर दे दी है, कई बार हम रजिस्ट्रेशन में अपनी डिटेल्स डालते हैं, रिटर्न में अपनी डिटेल्स डालते हैं, ई इनवॉइस के लिए डालते हैं, ई वे बिल के लिए डालते हैं, और ये सारा गवर्नमेंट के कॉमन पोर्टल पे या ई इनवॉइस के पोर्टल पे या ई वे बिल पोर्टल पे अपलोड किया जाता है. तो कई बार हम लीगली ये आस्क करते हैं, पूछते हैं कि आपको राइट है ये सारी चीजें आप कॉमन पोर्टल पे डालेंगे. तो इनने आपसे और हमसे पावर ले ली है. आप कोई इनके अगेंस्ट में लीगल एक्शन नहीं ले सकते. एंड दीज इंफॉर्मेशन विच यू आर प्रोवाइडिंग एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइलिंग 1, 3B, 9 और ई इनवॉइस के लिए, ई वे बिल के लिए, तो नाउ इट इज इम्प्लाइड कि आपने इनको परमिशन दे दी है कि सारे कॉमन पोर्टल पे डाल सकते हैं, एंड नो केस लाइज अगेंस्ट हिम. नेक्स्ट आते हैं बहुत इंटरेस्टिंग वन, क्लॉज नंबर 142, शेड्यूल 3. आपको मालूम है पैरा 7 एंड पैरा 8A एंड 8B. ये है क्या? पैरा 7 था, यू रजिस्टर्ड इन दिल्ली बट यू आर सप्लाइंग गुड्स फ्रॉम कोरिया टू US. पैरा 8A था कि जब आपने गुड्स इंपोर्ट किए और कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस में उसको स्टोर कर दिया. सो यू आर सप्लाइंग वेयरहाउस्ड गुड्स बिफोर क्लियरेंस ऑफ होम कंजम्पशन, यानी जब वो कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस में थे तभी आपने इनको सप्लाई किया है, होम क्लियरेंस के लिए बाहर नहीं निकला. 8B था हाई सी सेल. ये तीनों एंट्री शेड्यूल 3 में डाली गई फ्रॉम 1 फरवरी 2019 से. अब डिस्प्यूट ये था फॉर द प्रायर पीरियड जुलाई 1, 2017 से 31 जनवरी 2019 तक GST लगेगा, बिकॉज शेड्यूल 3 इज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज. रिट्रोस्पेक्टिवली नाउ ने कहा, हमने इसको अमेंड कर दिया कि जुलाई 1, 2017 से अब इस पे GST नहीं लगेगा. वेल डन. बट एक राइडर डाल दिया कि अगर आपने GST पे कर दिया है फ्रॉम जुलाई 1, 2017 टू 31 जनवरी 2019 तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा. इन माई हम्बल सबमिशन इट इज विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ. GST लगता ही नहीं था, अगर मैंने दे दिया तो मुझे रिफंड मिलना चाहिए, विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ. एक और चीज इंटरेस्टिंग जो सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 में डाली गई है, आपको रिवर्सल करना पड़ता है ITC का, राइट, कॉमन ITC का, ऑन अकाउंट ऑफ exempted सप्लाई, रूल 42 एंड रूल 43. शेड्यूल 3 की जितनी ट्रांजैक्शन है उसको हम एग्जेम्प्ट सप्लाईज का पार्ट नहीं मानेंगे, एक्सेप्ट जो पहले से प्रोविजन था पैरा 5 सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, उसके ऊपर आपको रिवर्सल करना पड़ेगा. शेड्यूल 3 में जितनी ट्रांजैक्शन है कोई रिवर्सल की जरूरत नहीं है. जो पैरा 7, पैरा 8A, पैरा 8B जो मैंने कहा, आपके आउटवर्ड पे GST नहीं लगेगा पर आपको कोई रिवर्सल नहीं करना. सिर्फ पैरा 5 होता था जिसके ऊपर रिवर्सल की बात थी शेड्यूल 3. अब इनने पैरा 8A सप्लाई ऑफ वेयरहाउस गुड्स बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन अगर आपने किया है, GST तो नहीं लगेगा लेकिन आपको रिवर्सल करना पड़ेगा. आपको एग्जेम्प्ट सप्लाईज के अंदर ये वैल्यू डालनी पड़ेगी. अब इंटरेस्टिंगली ये देखना पड़ेगा कि शेड्यूल 3 में चेंज आया जुलाई 1, 2017 से. हमने ट्रांजैक्शन कर रखी होगी सप्लाई ऑफ वेयरहाउस गुड्स,
तो जो ये एग्जाम सप्लाईज में जिसके लिए रिवर्सल करना है, क्या जुलाई 1, 2017 से, टू माई माइंड जहां भी आप कोई कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन डालते हैं दैट शुड बी एप्लीकेबल फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव डेट, बट अब ये कह रहे हैं कि पास पीरियड के लिए जीएसटी नहीं लगेगा, तो मे बी टू दैट एक्सटेंट रिवर्सल वुड बी डिमांडेड बाय द डिपार्टमेंट। नेक्स्ट चेंज हुआ सेक्शन 2 सबसेक्शन 16 आईजीएसटी एक्ट, डेफिनेशन ऑफ नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट, यानी a person who is not registered, unregistered person and receiving online information data access retrieval service. Section 2 subsection 17 of IGST Act, definition of online information data access retrieval service के अंदर उनने एक important aspect को delete कर दिया कि it need not necessarily automated with मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन। उन्होंने कह दिया कि भाई OIDR के लिए ये जरूरी नहीं है कि फुल्ली ऑटोमेटेड होनी चाहिए, मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा अगर है तो हम मान लेंगे OIDR है। दिस डेफिनेशन इज बीइंग वाइडन फॉर लेवी ऑफ GST और नंबर ऑफ OIDR सर्विसेज आर बीइंग रिसीव्ड बाय नॉन रजिस्टर्ड। अब वो कैसे करेंगे? वी हैव प्रोविजन अंडर IGST एक्ट जहां पे सप्लायर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है तो उसको ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में अपॉइंट करना पड़ेगा। सो दैट इज द सेपरेट प्रोविजन। एंड लास्ट सेक्शन 12 सबसेक्शन 8 ऑफ IGST एक्ट, प्लेस ऑफ सप्लाई का डिस्प्यूट था, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग मेल और कोरियर। ओशियन फ्रेट, एयर फ्रेट, आपको मालूम है 1 अक्टूबर 2022 से GST लग गया। ओशियन फ्रेट 5%, एयर फ्रेट 18%। प्लेस ऑफ सप्लाई का डिस्प्यूट होता था। सो अगर ये B2B ट्रांजैक्शन है, प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। सो मान लीजिए मैं सप्लायर हूं, फ्रेट फॉरवर्डर हूं और आप मेरे क्लाइंट दिल्ली में रजिस्टर्ड हैं, तो ट्रांजैक्शन इज इंट्रास्टेट CGST एंड दिल्ली SGST। बट एक प्रोविजो होता था और प्रोविजो में बोलता था व्हेन गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू ए प्लेस आउटसाइड इंडिया देन POS, प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स। तो मान लीजिए जर्मनी अगर माल जा रहा है तो POS जर्मनी हो जाएगा, IGST लगेगा। अब मैं IGST लगाऊंगा तो प्रॉब्लम ये आ रही थी कि रिसिपिएंट क्रेडिट कैसे लेगा, राइट? तो उनने क्या किया, 12(8) में जो प्रोविजो था उसको डिलीट कर दिया। तो इसका मतलब अब मैं CGST और दिल्ली SGST लगाऊंगा। बट अब मुझे एक समझ में नहीं आ रहा कि सर्कुलर नंबर 184 दे हैव इशूड, और सर्कुलर में उन्होंने कहा था कि आप इस ट्रांजैक्शन में IGST लगाएंगे, स्टेट कोड 96 मेंशन करेंगे और फॉरेन कंट्री लिखेंगे और इस IGST की क्रेडिट रिसिपिएंट को मिल जाएगी। ये सर्कुलर नंबर 184 27 दिसंबर 2022। अब ये प्रोविजो आपने ऑमिट ही कर दिया, तो अब उस सर्कुलर का क्या रेफरेंस रहा? सो अगेन एक और कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। एंड दीज आर ऑल चेंजेस विच इज प्रपोज्ड इन फाइनेंस बिल 2023 क्लॉज बाय क्लॉज। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊं। मैंने हिंदी इंग्लिश मिक्स की है। काइंडली अलाउ मी टू माय बोथ व्यूअर्स, हिंदी वाले इंग्लिश वाले दोनों मुझे अलाउ करें। समटाइम इट्स वेरी डिफिकल्ट बट आई हैव ट्राइड माय बेस्ट to make this video in English. Hope you like it. Stay tuned. Thank you very much.